Dear brothers and sisters, it's a joy to see you today. भाइयों और बहनों, आज आपसे मुलाकात करना सच में बड़े आनंद की बात है। As in 2 Corinthians 2:15, Paul said, "For we are the aroma of Christ to God among those who are being saved." दूसरा कुरिन्थियों 2:15 में पौलुस कहता है, हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए मसीह की सुगंध है। इस तरह ये कहता है। And among those who are perishing. और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध इस तरह से कहता है। In the previous verse, he said, "Thanks be to God who in Christ always leads us in triumphal procession." इसके पहले के वचन में वो कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। And through us spreads the fragrance of the knowledge of him everywhere. और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। पौलुस ये बताता है, The Lord himself does this for us. हमारे लिए स्वयं प्रभु ये करते हैं। He takes hold of our hands and leads us in a triumphal procession. वो हमारा हाथ थाम कर हमें जय के उत्सव में लेकर चलते, हमारी अगुवाई करते हैं। God calls you as the aroma of Christ himself. परमेश्वर आपको स्वयं मसीह की सुगंध कहते हैं। In the olden days, the kings, after conquering many cities, they would organize a parade. प्राचीन दिनों में जब राजा किसी शहर को जीत लेता था तो वो वहाँ पर जुलूस निकालता था। And during those parades, they burn incense. और उस जुलूस में वो सुगंधित द्रव्य जलाते थे। They show off all their plunders. वो अपनी सारी लूट दिखाते थे। And the people would cheer them as they go in a parade. और जैसे वो जुलूस में आगे बढ़ते, लोग उनके लिए उत्सव मनाते थे। But Paul here says, "You are the incense." पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुम ही सुगंध हो। By living a righteous life, धर्मी जीवन जीने के द्वारा we have the opportunity to spread the aroma of Christ. हमारे पास मौका होता है कि हम मसीह की सुगंध फैलाते चले जाएं। Leading a righteous life is very important. धार्मिकता का जीवन जीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। That is, having God in us is very important. यानी परमेश्वर का हम में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। In the Old Testament days, Aaron and the priests were anointed with the anointing oil. पुराने नियम के जमाने में हारून और जो याजक होते थे उन पर अभिषेक का तेल उंडेला जाता था। The oil was poured upon their heads, their beards, and upon their garments. और ये तेल उनके सिर पर उंडेला जाता था जो उनकी दाढ़ी और वस्त्र पर से बहता था। So they were smelling like a sweet smelling fragrance. वो तो एक बहुत ही मधुर सुगंध के जैसे होते थे। That's why the Lord says in Ezekiel 20:41, यहजकेल 20:41 में प्रभु यही तो कहते हैं, I will accept you as a fragrant incense. मैं तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा। What is this incense? अब ये सुखदायक सुगंध क्या है? In Isaiah 11:3, the Bible says clearly that fear of the Lord is the incense. यशायाह 11:3 में बाइबल कहती है कि यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। Yes, you are called to live in a way that reflects the character of Jesus himself. आपको इस तरह से जीवन जीने के लिए बुलाया गया है कि आप स्वयं यीशु के चरित्र को दर्शा सके। By living Christ, we offer a fragrant gift to the whole world. मसीह के जैसे जीने के द्वारा हम पूरे संसार को एक बहुत ही सुगंध देते हैं। In Proverbs 27:9, the Bible says, "Perfume and incense brings joy to the heart." नीति वचन 27:9 कहता है, जैसे तेल और सुगंध से मन आनंदित होता है, May the Lord use you also as an aroma to bring joy to those who are living around you. परमेश्वर निश्चय आपका ऐसे सुगंध जैसे उपयोग करे कि आपके आसपास के लोगों को आप आनंद दे सके। May the Lord fill you with His presence. परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति से भर दे। May the Lord fill you with the knowledge of God. परमेश्वर आपको परमेश्वर के ज्ञान से भर दे। And may He make you just like Him. और वो आपको बिल्कुल अपने जैसे ही बनाए। Our loving Heavenly Father, Lord, as we meditated today, let your sweet smelling presence fill everyone who is watching. परमेश्वर पिता, जैसे आज हमने आपके वचन का अध्ययन किया है,
आपकी सुगंधित उपस्थिति हर एक व्यक्ति को भर दे। Lord, let them become the aroma of Christ. और ये लोग तो मसीह की सुगंध हो जाएं। Wherever they go, ये जहाँ भी जाए, whatever they speak, ये जो कुछ भी कहें, let them bring joy to the hearts of the people who are around them, Lord. इनके आसपास के लोगों के लिए ये बड़ा आनंद लेकर आने वाले हो जाएं। Let them be with full of Jesus. और ये तो यीशु से भर जाएं। Lord, help them to live a life of Christ. प्रभु मदद कर कि ये मसीह के जैसे जीवन जिएं। Lord, I put your presence into them even now. प्रभु अभी इनके मध्य में मैं आपकी उपस्थिति रख देती हूँ। Lord, take away the unwanted things from their lives and let them become righteous just like you, Lord. प्रभु इनके जीवन से सारी अनचाही चीजों को दूर कीजिए और ये अभी धर्मी बन जाएं। Many are crying out to you saying, Lord, help me to live a godly life. बहुत से लोग आपको पुकार कर कह रहे हैं, प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं भक्तिपूर्ण जीवन जी सकूं। Father, take away the temptations from them. हे पिता, इनसे परीक्षाओं को दूर कर दीजिए। Lord, let them become just like you. और ये तो आप ही के जैसे हो जाए प्रभु। Fill them, Lord. इनको भर दीजिए। Lord, fill them to the measure of your fullness, O God. अपनी भरपूरी के नाप से आप इन्हें भर दीजिए प्रभु। Thank you for transforming each and every one even now अभी आप हर एक को बदल रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। and making them the sweet aroma of Christ. और इन्हें आप मसीह की सुगंध बना रहे हैं, इसलिए In धन्यवाद। Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless your friends. परमेश्वर आपको आशीष दे May दोस्तों। the Lord fill you more in the days to come. आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको और भी भरते चले If जाएं। you are blessed in this program, please write to us. अगर आपने इस प्रोग्राम से आशीष पाई है तो कृपया हमें लिखिए May you be a blessing to others. और आप दूसरों के लिए आशीष हो जाएं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। इस मौके को मिस ना करें। ತವರ ಬಿಡೋದಿರ್ಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದು ನಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರದು ಮಿಸ್ చేయకండి. हाँ, ये एक ऐसी सभा है जिसको आपको 2025 में नहीं चूकना चाहिए। Your sorrow will turn into joy. बेत्सदा आशीष सभा, रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। And every lump, every boil, every tumor disappear right now in Jesus' name. मेरा ये कान का सामने में बॉल निकला था 2 साइड में और बहुत ही बड़ा हो गया था। जैसे ही प्रेयर कंप्लीट हो गया तो मैंने टच किया तो ये ऑलरेडी सूख गया था। Big boil was there. बिग बॉल वाज देयर। Now it's completely gone. Absolutely nothing. Thank you, Jesus. We welcome you all on July 13th. 13 जुलाई को हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। July 13th is a special day for me. 13 जुलाई तो मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है। That day the Lord anointed me with the Holy Spirit. I know God is going to fill you too. इसी दिन परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक दिया और मैं जानती हूँ आपको भी भर देंगे। It is going to be a great day. ये तो बहुत ही महान दिन होगा There will be deliverance. और छुटकारा होगा। Where the Spirit of the Lord, there is deliverance. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है। Come and be blessed. आकर आशीष पाइए। We'll wait to pray with you. हम आपके साथ प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं। Come with all your friends and family. अपने सभी मित्रों और परिवारों के साथ में आइए। बेत्सदा आशीष सभा, रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। स्थान डॉक्टर DGS दिनकरन सेंटर, कारुण्या नगर, कोयम्बतूर। गांधीपुरम बस स्टैंड और कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक विशेष बसें चलेंगी। आवास और यात्रा सहायता के लिए विशेष रूप में अन्य राज्यों या जिलों से आने वालों के लिए कृपया संपर्क करें 9487846601। एक परिवार के रूप में आए।